चलिए आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देखिए, मणिपुर मामले को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का बयान स्वागत योग्य है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने मामले को लेकर के सख्त संदेश दिया, उससे साफ है कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि अगर मणिपुर में इतने महीनों से हिंसा हो रही है तो क्यों ना राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, आपको पहले सुनवाते हैं। About it. All of us must follow procedure. No, I am following. You are holding the floor, sir. I allow you to hold the floor. attract you. But Continue, sir. how a leader of the house suddenly get up and we are ready because the agenda is not suddenly get up and we are ready because the agenda is not read fully because we have also given notice 267. Suspension of business under Rule 267 on this day, and that is pertaining to thus you have to suspend all other business and take up this, not half an hour, not on benefit you. Honorable members, Sir, honorable members. let call I Pradhan can- Mantri one give second. statement. One second. We will discuss. One sec. Honorable members, we have business listed. 267 is the next item. I have to go sequentially. I will be taking all issues. Oh, but let me tell honorable members, one second. Let me tell honorable members, short duration discussion. Take your seat. Short duration discussion has three facets. One, every member of the House is entitled to give a notice for short duration discussion. Honorable members have availed that opportunity and they have sent notices to me. I have considered those notices. The second stage is that under the rule, under the mandate of the rule, I have to consult date and time from the leader of the House. That is, one second. Sir, I have a point of order. Yes. Sir, One second. my point of order is only one. One. It is on page 92. And the rule here, sir, is very clear. Which rule? 267 rule. I'm reading 267, the first line. Page 92 says, I am on this any agenda. rule be suspended in its application to a motion to the business listed before the council of the day. The rule in question shall be suspended for the time being. This means no other business till 267 is discussed first. Where does 176 come into this? There's no 176. It is on 267 and we want a discussion here on Manipur. We want a discussion and the Prime Minister has to open his mouth. One second. Manipur. How can you open it? Honorable member. How is the Prime Minister One of second, India? one second. How is the Prime Minister? Honorable- Come here and speak on Manipur. Honorable member. Honorable members, Rule 176 notice, the government is keen, agreeable for a discussion. I will have consultation with the leader of the House and decide it accordingly. The House is adjourned to meet at 2 p.m. today. तो राज्यसभा में देखिए, मणिपुर को लेकर के जोरदार हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर किस तरीके से संग्राम छिड़ा है। हम अपनी आवाज देश के हित में उठा रहे हैं और ये जो हो रहा है वो आप सब देख लीजिए। हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक मणिपुर के प्रधानमंत्री जी अपना रिजर्वेशन नहीं दे। लेकिन मैम प्रधानमंत्री का बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोला गया है कि वो मां बेटियों की प्रधान तो देखिए, मणिपुर को लेकर के किस तरीके से आक्रोश यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहा है। राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और इसी बीच बड़ी जानकारी,
राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई और इस वक्त आप खड़गे को सुन रहे थे। राज्यसभा में उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर बातचीत के बारे में कहा, सरकार के साथ चर्चा हो, इस बात का जिक्र खड़गे कर रहे थे। तो सदन में किस तरीके से हंगामा इस वक्त बरपा है और जाहिर तौर पर मणिपुर का मुद्दा, मणिपुर इस वक्त जल रहा है और देश भर में अगर चर्चा किसी चीज की है तो मणिपुर की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है मणिपुर की घटना 4 मई की बताई जा रही थी, जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद मणिपुर को बचाना बेहद जरूरी। कॉन्फ्रेंस कब ले निकली? आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती है। ऐसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर तो देश पे काला थप्पा। मैम, सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? क्या मांगी करे सरकार से? गूंगी बैरी सरकार। अगर ये सरकार सही में देश में सोचता है, लोगों के हित में सोचता है, तो ये सरकार तुरंत ये पद से, सारे पद को मोह त्याग करके अपना फर्ज महिलाओं के प्रति 50% बहनों के प्रति निभाएंगे। फिर पता चलेगा कि उनके जो जुमले हैं, जो उनके जो सारे स्लोगन्स हैं, ये ना सिर्फ एक चुनावी जुमला है, पर सच्चाई में वो उसे निभा भी सकते हैं। अब जो आपका संगठन बना है इंडिया निकाल दी मैंने भाई। तो देखिए, राज्यसभा में मणिपुर की घटना को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर के विपक्ष का हंगामा, लगातार चर्चा की बात विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीर दिल्ली से इस वक्त मिल रही है। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामेदार रहा है दोनों ही सदन, और राज्यसभा भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जाहिर तौर पर मणिपुर में जो हालात है इस वक्त, मणिपुर हिंसा में जल रहा है, इसका उपाय क्या? क्योंकि अभी दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और हंगामे के आसार भी थे। अदिति, बिल्कुल, मैं पार्लियामेंट में मौजूद हूं और सुबह से लगातार जो यहाँ स्थितियां हैं, आपको पता है, जैसा आपने कहा कि लोकसभा भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। माना पे यहाँ पे जो 2 सिटिंग एमएलए हुआ करते थे, उनकी डेथ हो चुकी है, उसको लेकर भी यहाँ पर पहला दिन है तो स्थगित उसको किया गया है। इसके अलावा राज्यसभा आपने देखी कि 12 बजे तक थी और 12 बजे शुरू हुई, 12:10 पे फिर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई। अगर यहाँ पर हर किसी के जबान पे एक नाम है तो वो मणिपुर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला था, उससे पहले ही जो माणिकचंद टैगोर हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि हमें स्टेटमेंट चाहिए, हम प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर की स्थिति पर स्टेटमेंट चाहते हैं। उसके अलावा भी लगातार, अब आप देखें कि मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी कि कानून मंत्री किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे। हालांकि कानून मंत्री ने हाल ही में अभी ट्वीट भी करा है और ट्वीट करके ये कहा है कि ये पूरा जमघट मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखाना चाहती हूँ। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर तमाम लोग यहाँ पर जी अदिति, नेटवर्क में आपके हैं और अभी आपने खा यहाँ देखी मोदी ने। अदिति, आपके नेटवर्क में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, सही तरीके से हम तस्वीर देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अदिति, आप मुझे ये बताइए कि चर्चा की मांग दोनों ही सदनों में हो रही है, लेकिन और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा भी गया है कि इस मामले पर हम चर्चा करेंगे और जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष, अदिति, सवाल यही पूछ रहा है कि आज मणिपुर में हिंसा की शुरुआत नहीं हुई, महीने हो चुके हैं। शिखा, देखिए, हम दोनों तस्वीर आपको दिखा देते हैं, दोनों तस्वीर पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहली तस्वीर ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुत दुख है, दुख के साथ मैं बता रहा हूँ। उन्होंने राजस्थान का भी नाम लिया, छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया, मणिपुर का भी नाम लिया। सवाल ये उठता है कि कब तक सिर्फ रिग्रेट करते रहेंगे? सवाल ये उठता है कि कब तक हम सिर्फ ये कहेंगे कि जब कांड हो जाता है, जब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, उसके बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा? सवाल ये चलता रहेगा कि पहले तो काम हो जाए। देखिए, 72 दिन से ये लगातार चीजें चल रही थी, पता था कि अनहोनी हो सकती है, उसके बाद भी इसको नहीं बख्शा गया। लेकिन सरकार की तरफ से दावे भी हैं, सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि बख्शा भी नहीं जाएगा। प्लस दूसरी बात है, उन्होंने अपील भी की कि इसको कानून व्यवस्था को स्ट्रांग बनाए। गृह मंत्री ने खुद एन बीरेन सिंह से बात भी करी है। तमाम ये चीजें हैं, लगातार सरकार संपर्क लेकिन अदिति, इसी बीच एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग भी विपक्ष कर रहा है। जाहिर तौर पे मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो महीनों से हो रही है, जो तस्वीर भी, जो निंदनीय घटना भी हमने देखी, जो तस्वीर वायरल हो रही है वो भी 4 मई की है। तो एन बीरेन सिंह अब तक चुप क्यों है? क्यों आखिर इन समुदायों को जोड़ने का काम नहीं हो रहा? और अगर नहीं जोड़ सकते तो कम से कम मणिपुर की स्थिति ऐसी तो नहीं होनी चाहिए थी।
देखिए, आज तो यही सवाल है कि वहां राष्ट्रपति शासन अभी के अभी क्यों नहीं लगता। देखिए, जो विपक्ष यहाँ कर रहा है वो जाहिर तौर पे जो पिछली 2 बार से कर रहा है, वो किसी न किसी, कभी अडानी के मुद्दे पे, कभी किसी मुद्दे पर कुछ चाहता है कि सरकार को घेरा जाए। तो यहाँ पर वही वोट की राजनीति, वही राजनीति चल रही है। यहाँ पर जैसा स्मृति ईरानी ने कहा कि मैंने पहली बात करी, वहां पे तमाम चीजें हुई, अमित शाह ने एन बीरेन सिंह से बात की, लेकिन सवाल उठता यह है कि सबसे पहला काम एन बीरेन सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं। एन बीरेन सिंह ने अपना ड्रामा किया, इस्तीफा जनता के बीच में लाया और फिर उसको फाड़ के फेंक दिया। सवाल उठता है कि इन तस्वीरों के बाद आज सबसे पहला काम एन बीरेन सिंह का अभी एनआई पर बयान आया, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है। क्या ये घटना केवल दुख करने के लिए है? तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ चला है? क्या राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? उसके बाद ये जो घटना है जो पिछले 72 दिन से चल रही है और आगे यही ट्राइब्स की लड़ाई में और न जाने क्या क्या हो सकता है, तो सवाल ठीक वैसा ही उठता है कि अब आगे क्या। लेकिन आपको बता और दें अब कि आगे क्या के साथ सवाल अदिति ये भी उठता है कि आप सोचिए, जो विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, बेंगलुरु में एक सबसे बड़ा मुद्दा था उनके पास और वो था मणिपुर को लेकर के। तो जाहिर तौर पर जो विपक्षी पार्टी के नेता है, जो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंडिया के उस मुद्दे को जरूर उठाएंगे जहां सरकार घिरती हुई नजर आएगी। तो इसकी तैयारी तो पहले से होनी चाहिए। देखिए, अगर कल इस तरह की जो वीडियो है कल जिस तरह से वायरल नहीं होती तो शायद आज मणिपुर के साथ साथ और भी मुद्दे होते। लेकिन जिस तरह का वीडियो आया, विपक्ष के पक्ष में आया और विपक्ष ने अब इसको मुद्दा बनाया। आप देख लीजिएगा कि जितने दिन संसद चलेगी ये मुद्दा बरपाता रहेगा। ना सरकार इस पर स्टेटमेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे मीडिया के सामने इस बात का जिक्र कर दिया। अगर नहीं किया होता तो सवाल उठता कि क्यों प्रधानमंत्री इससे बच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने आए, उन्होंने अपना दुख भी व्यक्त किया। और लेकिन हालांकि अगर सिर्फ राजनीति से अलग हट के बात करें तो सवाल उठता है कि अब क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? पहला सवाल। क्या हाथों हाथ कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन अब क्या, आगे क्या, उन महिलाओं के लिए क्या, उनके परिवारों के लिए क्या, और कब ये रोका जाएगा? हर बार के होने के बाद। लेकिन आपको पार्लियामेंट में वोटों की राजनीति चाहे विपक्ष की तरफ से दिखती रहेगी और चाहे, क्योंकि देखिए सवाल तो छत्तीसगढ़ पे भी उठता है, वहां भी महिलाओं की ऐसी तस्वीर आई है। कौन महिला ऐसी तस्वीरें, कौन महिला चाहेगी कि वो सड़क पे ऐसे निकले? दूसरा सवाल उठता है राजस्थान में 2 बच्चे नाबालिग थे, बाहर निकले, होटल मांगने गए, जब होटल नहीं मिला तो यूनिवर्सिटी के लड़के उनको अपने साथ ले गए, उस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। तो हर जगह सवाल ये उठता है कि कब तक ऐसा होता रहेगा? बिल्कुल, और फिर महिलाओं को सशक्त करने की बात हर एक पार्टी करती है, लेकिन बहुत जरूरी है अदिति कि मणिपुर पे जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, नहीं तो मणिपुर पूरी तरीके से जरूर बर्बाद हो जाएगा। हालांकि पीएम की तरफ से कहा गया है कि सत्र में चर्चा होगी। लगातार आप नजर बनाकर रखिएगा अदिति। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।